if ax square plus bx plus c equals 0, then this was the formula to find the quadratic value of the roots of the quadratic equation. This is known as quadratic formula. And there was two cases here. In some problem, the square root easily you can find, and some cases you have to find the square root by using division method. And you have done yesterday. So students, there are four questions in your exercise 5.3. There are four questions, 5.3, and that are 8, 9, 10 and 11. Question number 8, 9, 10 and 11. Here are four questions, and these questions have come in 2013, 18, 17, 6, 19, 21, 20 and 2012. So you will practice these four questions very because these are the important questions, and I hope कि इनमें से ही कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. अगर नहीं भी मिलेगा तो just there will be a change in the value, and you know how to apply the formula of the quadratic equation. How can you find the square root of the quadratic equation? To find the root of particular number by using division method. So if any questions comes, okay, then you will apply the same procedure to find the root of the quadratic. Up here, suppose that if 2x minus 1 upon x equals 7. ये given है. And the question is, find the root of the quadratic equation by using formula. So first of all, you can see here there is LCM of x. अगर आप देखोगे यहाँ पे x LCM है, तो just multiply x in all the term. So if you are multiplying here, this one is 2x square. Here if you will multiply x, so x and x cancel out, minus x. Sorry, minus 1 equal, here multiply will be 7. And you know the LCM is multiply in all the term. अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x का तो x स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल आउट, द रिमेनिंग टर्म इज 1. एंड अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 7 into x 7x. Now adjust 2x square minus 7x minus 1 equal 0. 7x is transposed to the left side, and here is plus 7x, so it comes to the left side, that it will be minus, so minus 7x minus 1 equal 0. Now you have get the quadratic equation in standard form. Now a equal 2 and b equal minus 7, c equal minus 1. Now apply x equal minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, and by using this formula you can find the roots of this quadratic equation. So there are two question of this type. One is from question number 9 second, and question number 10 second. 10 second में क्या है कि x minus 18 upon x equal, ये क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा. हिंट दे दे रहे हैं, आप इसको कर लेना. क्वेश्चन नंबर ये 9 का सेकंड था जिसको आपको हमने हिंट दिया है. क्वेश्चन नंबर 10 का ये सेकंड है. x minus 18 upon x equal 6. Now how can you solve this here? देखो, what is the LCM? What is the LCM here? X. You can see the LCM is x. So multiply by x in all the terms. If you are multiplying here, you will get x square. Here but multiply by x and x cancel out. The remaining is minus 18 equal. अगर यहाँ multiply करते हैं 6 into x, this is 6x. Now adjust all the terms. X square,
6x transpose to the left side minus 6x minus 15 equal 0. So this is the quadratic equation. Now you have get in standard form a equal 1, b equal minus 6 and c equal minus. So apply x equal minus b plus minus under root e square minus 4ac upon 2a, and by using this formula you can find the roots of this quadratic equation. So there are four important questions in this exercise. Question number 8, 9, 10 and 11, and everyone will try to solve these questions and will practice also for the point of examination board examination point of view. ठीक है बेटा? Now the next topic is to check the roots of nature of the roots of the quadratic. ठीक है? हाँ, देखिए question number 4 first part, x minus 2 upon x plus 2. अच्छा, x minus 2 upon x plus 2. Question number 4 first part, x minus 2 upon x plus 2 plus x plus 2 upon x minus 2. x plus 2 upon x minus 2 equal. ठीक है? देखो व्हाट इज एलसीएम हियर? अगर आप एलसीएम देखोगे तो x plus 2 x minus 2, दिस इज द एलसीएम. क्लियर? x plus 2 x minus 2, दिस इज द एलसीएम. एलसीएम यही होगा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर का टर्म x plus 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर का टर्म x minus 2 है. तो एलसीएम आपका टोटल हो जाएगा x plus 2 x minus 2. अब यहाँ पे करना क्या है? अगर आप इस टर्म में एलसीएम डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करो मतलब एलसीएम का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो टर्म मिलेगा वो x minus 2 होल स्क्वायर बनेगा. बोलो क्लियर है? क्योंकि अगर x plus 2 देखो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं x plus 2 x minus 2 का इस वाले टर्म में x plus 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको x 2 बचेगा. ठीक है? तो x minus 2 और एक x minus 2 यहाँ पे है, x minus 2 कितना बना? x minus 2 होल स्क्वायर. तो सिमिलरली फिर यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे अगर एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपको मिलेगा? x plus 2 अपॉन x minus 2 में अगर एलसीएम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया? टेल मी. अगर x plus 2 अपॉन x minus 2 में एलसीएम का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कौन सा टर्म मिलेगा? x plus 2 होल स्क्वायर. ठीक है? x plus 2 होल स्क्वायर क्यों मिलेगा? देखो अगर x plus 2 अपॉन x minus 2 है और एलसीएम आपके पास है x plus 2 x minus 2, तो x minus 2 बढ़ जाएगा, x plus 2 and x plus 2 यही मिलेगा जिसको आप x plus 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं. क्लियर है? दूसरा तरीका, एक तो एलसीएम हमने आपको दिखाया है, दूसरा तरीका आप क्या करोगे? देखो यहां से इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x minus 2 into x minus 2, x minus 2 होल स्क्वायर, और इधर से इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो x plus 2 x plus 2 x plus 2 होल स्क्वायर. टोटल ये दोनों टर्म होल स्क्वायर आ जाएंगे और डिनोमिनेटर में जो टर्म होगा वो एलसीएम होता है, आपको पता ही है. तो एलसीएम कितना है? x plus 2 और x minus 2 इक्वल 4. यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ो. देखो just open this one by using the identity. This is of the form a minus b whole square, ये a plus b whole square, और ये जो है a plus b a minus b है. And you know a plus b a minus b का मल्टीप्लाई कितना होता है? अगर a plus b a minus b का मल्टीप्लाई करें ये कितना आएगा?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको ओपन करोगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो जब इसको ओपन किया देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 2 जा 4 और माइनस 2ab, तो पहले a b कर लो 2 इंटू एक्स माइनस इंटू 2 4x, बोलो क्लियर है। ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2ab, अब इसका ओपन करो प्लस देखो x प्लस 2 होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस और 2ab 2 इंटू एक्स 2x इंटू 2 4x। आई होप कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने सिर्फ ओपन किया हुआ है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। और फिर इसके नीचे देखो a प्लस b a माइनस b, दिस इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, so this is x square minus equal इक्वल 4। नोट कर लो यहां तक, इसके आगे रब करें, मेक अ नोट। रब करें। अब इसके आगे कैसे सिंपलीफाई करेंगे, देखो यहां पे x स्क्वायर एंड x स्क्वायर हाउ मच, x स्क्वायर एंड x स्क्वायर हाउ मच 2x स्क्वायर, so x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब x का टर्म देखो 4x plus 4x and minus 4x, so these are cancelled out, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस 4x है यहाँ प्लस का 4x, they have opposite sign and they are equal, to cancel out। अब फिर यहाँ पे देखो ये प्लस का 4 है ये प्लस का 4 है, प्लस 4 इक्वल इक्वल प्लस 8, ठीक है। x square 2x square 4 plus 4 8 divided by x square minus 4 equal ये। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अगर इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 कंसीडर कर लो, जैसा कि आप लोग अब इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखो यहाँ 4 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ गया 4x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर रहे हैं 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 16 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इक्वल माइनस 16 4 4 जा 16। और अगर 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में एज इट इज आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8, क्योंकि 1 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही टर्म आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8। अब इसके बाद अगला स्टेप हम क्या करते हैं, इसको सभी जो भी टर्म्स हैं इनको लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इधर ट्रांसपोज कर दिया और इक्वल टू 8 प्लस 16 कर दिया, ठीक है। माइनस 16 को उधर ले जाके शिफ्ट कर दे रहा है प्लस 16। अब ये 4x स्क्वायर में 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल 16 एंड 8 कितना हो गया 24, ठीक है 24। तो x स्क्वायर इक्वल 24 डिवाइडेड बाई 2, ये 12 आ जाएगा, तो x स्क्वायर कितना हो गया आपका 12, ठीक है। अब x स्क्वायर के जब प्राइम फैक्टर करोगे यहाँ पे देखो x स्क्वायर का अगर प्राइम फैक्टर 12 का प्राइम फैक्टर करते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12, यही होता है 12 का प्राइम फैक्टर। तो इसमें आप जब अगर स्क्वायर इधर से हटाएंगे
ये अंडर रूट में आएगा और प्लस माइनस करके आएगा। तो x स्क्वायर इक्वल अगर 12 है तो x इक्वल कितना हो गया प्लस माइनस, और जो पेयर में है वो स्क्वायर रूट से बाहर रहेगा, जो पेयर में नहीं है वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। यहाँ 2 प्लस 2 का पेयर है तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। ये दो वैल्यूज आ गए, x1 जो है 2 अंडर रूट 3 और x2 minus 2 under root 3. This is the solution of this quadratic. Clear हुआ? चलो, ये अनामिका आप थे? आवाज आस्ते? अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है कि कोई क्वेश्चन? से अगर कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप जो है प्रॉब्लम पोस्ट कर देना। दूसरी सबसे बड़ी बात बेटा, जो भी आप यहाँ पे प्रेजेंट हो, नियर अबाउट आई थिंक 20 students are present here, and everyone subscribe my channel so that you can get update also। ठीक है, हम जब टाइम टू टाइम एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको अपडेट देते रहते हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, नोटिफिकेशन बंद कर देना। अगर आपको नोटिफिकेशन जाता हो तो बंद कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप कर लो ताकि आपको जो भी है क्लासेस जितने भी होते हैं वो सब जाते ही है। ठीक है, सब क्लासेस के जितने वीडियोस हैं सब जाएंगे, और प्लस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड कैसे क्या करना है, कैसे करते हैं, सारे अपडेट्स वहाँ पे हम डालते हैं। तो अगर जो भी नहीं किया बेटा आप सब्सक्राइब कर लो, फायदा आपके लिए होंगे। फिर आगे देखो, अब चलते हैं क्वेश्चन सीधे नेचर रूट्स पे। तो सबसे जो प्रॉब्लम आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि हाउ कैन यू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसमें हर बार रिपीट करता है, चाहे जब भी पेपर उठा के देखो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। तो पहले हम सीधे उसी क्वेश्चन को टारगेट करते हैं ताकि आप उस क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन को टारगेट। 1 प्लस एम स्क्वायर, देखो हालांकि 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझना इसको बिल्कुल बारीकी, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत बच्चे गलती करते हैं। हालांकि कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सेम पैटर्न वही है, लेकिन फिर भी गलती कर देते हैं। अब या तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा या तो कंसेप्ट नहीं होता है। क्वेश्चन में 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है, और प्लस 2mcx प्लस 2mcx दिया हुआ है, और प्लस c स्क्वायर माइनस प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल 0, ये दिया हुआ है। इसको मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार रिपीट करता है। बोर्ड का तो समझो ये फेवरेट क्वेश्चन है, अगर बोर्ड का पेपर आता है तो उसमें कहीं न कहीं ये डाल देता है। कह रहा है इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स प्रूव दैट c स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। c स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर फॉर इक्वल रूट्स। क्लियर? तो फॉर इक्वल रूट्स यू नो, फॉर अगर इक्वल रूट्स की बात करें तो फॉर इक्वल रूट्स व्हाट इज द कंडीशन, हु विल टेल मी फर्स्ट, जल्दी बताओ। फॉर इक्वल रूट्स व्हाट इज द कंडीशन, पहले ही कंडीशन आपसे पूछा था, व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स? गुड, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 या d इक्वल 0। अब देखो दिस इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, टेल मी दिस इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यस। तो जस्ट कंपेयर
the quadratic given quadratic equation to the standard quadratic equation whatever for equal roots b square minus 4ac equal 0. ये तो हमने कंडीशन ले लिया. Now here a equal how much? A equal how much? A equal how much? कंपेयर करो. A equal कितना होगा? 1 plus m square. 1 plus m square. बोलो b कितना होगा? What is the value? mc. क्योंकि ये x का कोफिशिएंट है तो b की वैल्यू 2mc. And what is the constant term c here? c square minus a square. c square minus a square. अब यहाँ पे डबल देखो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपेयर होता है इसका कैपिटल कर लेते हैं सी और बाकी जो इस क्वेश्चन में गिवन है उसको स्मॉल सी कंसीडर कर ले रहे हैं तो इसी में दिया दिया हुआ उसी में हम कंसीडर करते हैं. तो ए बी और सी की वैल्यू आपको मिल चुका है. ठीक है. जस्ट पुट हियर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0. और या तो दूसरा अगर आपको यहाँ पे सिंबल में कंफ्यूजन हो रहा है तो इसका दूसरा तरीका ये है कि इसको कैपिटल में कर लो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0. ऐसे कर लो. ठीक है. तब भी बात वही आएगा c कैपिटल तो रहेगा ही रहेगा. तो यहीं पे बेटर है किसी को c को कैपिटल निकालो. b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 2mc इक्वल c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. Clear? Now just put here in the given condition b square minus 4ac. अब स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हो. क्या गलती करते हो उसको देख लेना. अगर a की वैल्यू 1 प्लस b स्क्वायर में 2mc पूरी वैल्यू देखो 2mc यहाँ b स्क्वायर के जगह पे 2mc ऐसे होल स्क्वायर करोगे माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 1 प्लस m स्क्वायर ये रखेंगे 1 प्लस m स्क्वायर और c की वैल्यू है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल 0. अब आपको गलती बता दें. बच्चे क्या करते हैं कि 4 का मल्टीप्लाई इसमें तो कर दिया फिर इसको छोड़ देते हैं. उसको डायरेक्ट या तो एक में किया और दूसरा इट इज लिख दिया उसके बाद कॉपी कर दिया तो वहां पे मामला गड़बड़ हो जाता है. और बेटर है कि मल्टीप्लाई करने से पहले देखो कुछ और रिजल्ट मिल रहा है क्या. तो अगर इसका स्क्वायर करते 2mc का स्क्वायर करते तो ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर मिलेगा. 2 का स्क्वायर 4 m का स्क्वायर m स्क्वायर c का स्क्वायर c स्क्वायर और -4 इसको हम टच नहीं कर रहे हैं. इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं 1 प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल 0. ठीक है. नाउ यू कैन सी देयर इज ए कॉमन इन बोथ द टर्म. ये पूरा एक टर्म है 4 1 प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और एक टर्म इधर है 4 m स्क्वायर c स्क्वायर. इन दोनों में 4 कॉमन है. 4 लेकर के कॉमन अगर उधर राइट साइड पे डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा. तो रिमेनिंग जो टर्म बचेगा वो सिंपली m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 1 प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल 0. इतना ही टर्म बचेगा. क्यों? क्योंकि 4 को हमने कॉमन लिया है और कॉमन लेने के बाद उधर राइट साइड में डिवाइड कर दिया है. ये आपका टर्म बच गया m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 1 प्लस m स्क्वायर and in the second bracket c square minus a square. यहां तक कोई किसी को दिक्कत तो नोट कर लो. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. रिटर्न स्टूडेंट्स रिटर्न ओके. आगे बढ़ते हैं.
से m स्क्वायर माइनस 1 प्लस m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल 0 ये गिवन यहां तक फाइंड कर लिया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। If you will multiply, then what will you get here? m square c square minus, इस ब्रैकेट को अभी ओपन मत करना, इसके अंदर इनको मल्टीप्लाई कर देना। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into c square 1 into a square minus a square, क्योंकि प्लस 1 माइनस a माइनस प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर, फिर m स्क्वायर c स्क्वायर m स्क्वायर, पहले देखो 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 1 into c स्क्वायर, देन 1 into minus a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देन m स्क्वायर into c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर, एंड उसके बाद m स्क्वायर into a स्क्वायर, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी हमने ब्रैकेट ओपन नहीं किया है, क्यों नहीं किया हुआ है, क्योंकि इसके देखो इसके पहले माइनस लगा हुआ है, एंड यू नो इफ देयर इज अ माइनस साइन बिफोर द ब्रैकेट, आफ्टर ओपनिंग ऑल द साइन इन द ब्रैकेट चेंजेस, सब ब्रैकेट के नंबर साइन चेंज हो जाते हैं। तो अगर इसको चेंज करोगे, अब ओपन कर दीजिए, माइनस c स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल 0। जो भी टर्म थे माइनस प्लस में होंगे और प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद वन टर्म इज कैंसलिंग हियर, देखो m स्क्वायर c स्क्वायर पॉजिटिव है और यहाँ पे माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर नेगेटिव, बोथ आर कैंसिल आउट, so the remaining terms are minus c square plus a square plus m square a square equal 0। अब इस c स्क्वायर को, ये माइनस c स्क्वायर है, उसको राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं और बाकी इन दोनों के एक ही साइड में लेते हैं। यहाँ माइनस c स्क्वायर है, उधर शिफ्ट करेंगे प्लस का हो जाएगा c स्क्वायर इक्वल, और ये जो प्लस एक ही तरफ रह जाएंगे a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन a स्क्वायर है, कैन सी वेरी क्लियरली, तो c स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर कॉमन कर लो 1 प्लस m स्क्वायर, एंड दिस वाज टू प्रूव। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, c स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। नाउ यू कैन सी हियर कि देयर वाज अ condition was the same, but what was the calculation, you can see here, and you will do this question like this, जैसे हमने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही आप एग्जामिनेशन में इसको करेंगे। ध्यान कहाँ देना है, एक तो मल्टीप्लाई करने में ध्यान देना है, दूसरा कहाँ ध्यान दोगे, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तब, क्योंकि बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं बेटा आप लोग, जैसे ही माइनस ब्रैकेट को पहले तो पूरा मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद जब माइनस ब्रैकेट खोलना तो इसके जितने भी साइन है सब चेंज कर दोगे, तब एडजस्टमेंट करोगे, ये कटेगा, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर है। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, प्लीज रेज योर हैंड, सॉरी रेज योर हैंड तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे मोबाइल में बेटा रेज योर हैंड का ऑप्शन नहीं आता है, पुराना वर्जन यूज करते हैं, तो किसी को अगर पूछना है तो आप जस्ट में आस्क। ओके चलो ठीक है, तो आर यू रेडी सुमित? सुमित बेटा ये 950 पे ओवर होता है, 955 पे? यूआरएल में क्या टाइम दिया है आपको? 950 पे, तो 950 तो हो गया बेटा, 50 है ना। चलो तो चलते चलते सिर्फ आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप ट्राई कर दो 1 मिनट में, उसके बाद आपने लेफ्ट करके चले जाना आप लोग। जस्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर इक्वल रूट्स।
आपको p की वैल्यू फाइंड करना है। कोई जाएगा नहीं, आंसर फटाफट दे के जाना आप लोग। px स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, px स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। सॉल्व करो फॉर इक्वल रूट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p फॉर इक्वल रूट्स एंड सेंड द आंसर, देन यू मे लीव नाउ। डू फास्ट, आई एम जस्ट वेटिंग। आपको बता के जाएंगे क्वेश्चन, अगर आपको 1-2 मिनट में, वैसे आपको ज्वाइन भी करना होगा दूसरा सेशन। क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 लगाओ। ए की वैल्यू की रखो, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 3। फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। 4/3 RNS byte. Okay, now you may leave now.